बुशरा टूर एंड ट्रैवल्स लाए हैं माह मुहर्रम और सफर में स्पेशल पैकेजेस जिनकी कीमतें निहायत ही कम रहेंगी। इन पैकेजेस के तहत मुख्तलिफ काफिले रवाना होंगे जो कि 2 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 23 जुलाई, 29 जुलाई, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त और 25 अगस्त को यहाँ से रवाना होंगे। आज ही रब्त कीजिए बुशरा टूर एंड ट्रैवल से, नेताजी नगर, शीश महल टाकीज रोड, रायचूर। फोन नंबर है 9036391629। एक और फोन नंबर है 9980680686। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर कोरतलार में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट रायचूर की जानिब से आज एक शानदार तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में SSLC इम्तिहानात में रायचूर जिले के उर्दू मीडियम मदरसों में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी अस्पताल ने की, जबकि बतौर मेहमानान खुसूसी साबिक़ा रुकन जिला पंचायत असलम पाशा, जिला वक्फ मशारती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान, साबिक़ प्रोफेसर SLN कॉलेज व कांग्रेस लीडर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन ख्वाजा अजीमुद्दीन फरीदी, ईफा फाउंडेशन के सदर मोहम्मद साजिद, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर, जहीरुद्दीन एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी कॉलेज, सैयद मिनाजुल हसन असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, MA यूनुस ECO मानवी, खैसर आमिना क्लाउड इंजीनियर बेंगलोर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मजहर हुसैन सदर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशनल ट्रस्ट रायचूर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया, उन्हें तहनीत पेश की गई। इसके कुछ मनाजिर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाजा कीजिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
इसके बदले आपको जज़ाए खैर बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेज के कुछ बच्चे अभी भी आए हैं और तमाम स्टूडेंट्स का और जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, दीगर तालुके के जितने भी तलबा हैं और जिन्होंने भी उर्दू स्कूलों में टॉप किया है अपने अपने हाई स्कूल्स में, और जहाँ पर तो जो मेहमान हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं, अब बस चंद ही घड़ी में या चंद ही लम्हात में इस प्रोग्राम का इंशाअल्लाह बदस्तूर अमल पैराई होगी। सबसे पहले मैं गुल पेश करने के लिए इस जलसे के सदर डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भंडारी हॉस्पिटल रायचूर को मैं गुल पेश करने के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद जुहैर को, मोहम्मद जुहैर जोरदार तालियों से इस्तेमाल। इसी के साथ मोहम्मद फरीद खान मिसबाही बहुत खास मेहमान हैं, इस प्रोग्राम के कई साल से रौनक का हिस्सा हैं और माशाअल्लाह कई सारे बच्चों की मदद भी करते हैं। हमारा इशारा जनाब मोहम्मद असलम पाशा साहब, एक्स ZP मेंबर रायचूर, इनको गुल पेश करने के लिए मोहम्मद जुहैर को दावत दें। एक और हमारे दरमियान मैथ्स के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे रायचूर जिले के 90% मदारिस का इन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद वहां पर टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन भेज दिए, जो बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे खास आप जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, विजनर बेंगलुरु। आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। आपको मैं गुल पेश करने के लिए मोहम्मद जुहैर को दावत देता हूं कि गुल पेश करें। ऐसर अमीना, इसी तरह के साथ चाहे कैसे भी हालात आए, ये प्रोग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रोग्राम के जरिए कई बच्चियों की मदद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मजहर हुसैन को गुल पेश करने के लिए दावत देता हूँ। मोहम्मद जुहैर जोरदार तालियों से। इसके बाद तो उर्दू मीडियम स्कूल में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो सभी SSLC बच्चों को जो आज यहाँ पर अवार्ड फंक्शन रखा गया है, इस फंक्शन के सदर डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब, उसके साथ साथ उभरते हुए हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर आने वाले दिनों के APJ कलाम, आने वाले दिनों के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आने वाले दिनों के सूफिया कुरैशी। ये जो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट है, रायचूर में पिछले 9 साल से अलग अलग फील्ड में सोशल वर्क करते आ रहे हैं। जैसा कि बहुत से विलेजेस में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप भी किया गया है, जिससे बहुत से लोगों, जैसा कि जो भी गरीब लोग हैं, उन्हें बहुत से इसका फायदा मिला है। उसके साथ साथ उस डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं, जो शख्स हैं, जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, मजहर हुसैन, ये एक ऐसा नौजवान है जो चाहता है कि हमारे अतराफ जो भी बच्चे हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे तालीम को हासिल करें। तो तमाम बच्चे तालीम को हासिल करके एक अच्छे पोजीशन में जाए। वो एक ऐसा ख्वाब रखे हैं कि हमारे
कम्युनिटी के बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, केएस ऑफिसर बने और साइंटिस्ट बने। ऐसा ख्वाब रखते जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे रायचूर के, पूरे रायचूर के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 15 से 16 उर्दू हाई स्कूल्स हैं, वहाँ के हाई स्कूल्स के बच्चों को जो टॉप किए रहते हैं, उन्हें रायचूर को बुलाकर उनको एक मोटिवेशन देने के लिए लगातार 9 साल से ये काम को करते आ रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से ऐसे प्रोग्राम करने की वजह से बहुत से बच्चों को मोटिवेशन मिला। आज जो बच्चे यहाँ पर अवार्ड लेके गए, इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, बहुत से बच्चे मेडिकल फील्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत से जो बच्चे हैं जो एसएसएलसी के बाद अपनी माली हालात की वजह से पढ़ नहीं सकते थे, उन बच्चों को यहाँ की इस फंक्शन के जरिए से बहुत से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। मुझे मालूम है कि लास्ट 2 साल के पीछे यहीं पर लिंगसिंगुर की एक लड़की जो एसएसएलसी में 95% की थी, मगर आगे पीयूसी वो बच्ची साइंस करना चाहती। इस प्रोग्राम में स्टेज पे मौजूद सभी चीफ गेस्ट सदर, यहाँ पे हाल में बैठे थे सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे मजहर हुसैन साहब पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं कि उर्दू स्कूल के बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको तहरीर पेश किया जाए। जनरली क्या होता, हाईएस्ट स्कोर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उर्दू स्कूल का स्कोर कम रहता, इसलिए वो बच्चे ज़्यादा मेन स्ट्रीम के प्रोग्राम्स में नहीं आते। और हमारे अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि हम उर्दू को कम समझते हैं, कम दर्जा समझते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ा मीडियम के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उर्दू मीडियम के बच्चे बहुत कम बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। एसएसएलसी के बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग प्राइमरी हाई स्कूल में कन्नड़ा तवज्जो देके सीखते थे, इंग्लिश में टफ समझकर उसको छोड़ देते हैं। 10th के बाद आपको इधर कन्नड़ा में या इंग्लिश में पढ़ना पड़ता, तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते, पढ़ते फेल होते हैं या नहीं तो ड्रॉप आउट हो जाते। कन्नड़ा मीडियम के जो बच्चे रहते हैं वो 1 to 10 पूरे सब्जेक्ट कन्नड़ा पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेगा। उर्दू मीडियम के बच्चे पूरे सब्जेक्ट उर्दू पढ़ते, एक सब्जेक्ट कन्नड़ा पढ़ते, एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ते। तो कन्नड़ा और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कन्नड़ा मीडियम के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, साइंस करते, आर्ट्स करते, कॉमर्स करते, आगे चले जाते। लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे आगे जाने में बहुत कम रेशो। हमारा एक क्लासमेट था, हमारे साथ PhD करता था केमिस्ट्री में, वो उर्दू मीडियम से, मोहम्मद सलीम उनका नाम था। तो 1-2 आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहीं पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप लोग टीचर्स जो स्कूल में रहते हैं, बच्चों को हिम्मत देना चाहिए कि उर्दू मीडियम कन्नड़ा मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं है, इंग्लिश मीडियम बहुत बड़ा तीर मारने का कोर्स नहीं है। सभी मीडियम क्या है, एक लैंग्वेज है, उसमें कोई तीर नहीं है, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, कन्नड़ा मीडियम के बहुत पढ़ते, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो हम उसको समझना चाहिए कि हमारे बच्चों में हिम्मत देना चाहिए कि उर्दू मीडियम भी किसी मीडियम से कम नहीं है, कोई भी मीडियम आप यूज सकते हैं, जस्ट मीडियम आप यूज सकते हैं। हमारी मातृ जबान उर्दू है, वो उर्दू में पढ़ रहे, उनकी मातृ जबान कन्नड़ा है, वो कन्नड़ा में पढ़ रहे।
अब मिक्स होके दोनों मिलके हम इंग्लिश में पढ़ा, उर्दू और कन्नड़ा मादरी जमाना। तो ऐसा कोई थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है उर्दू, तो हम उसको हिम्मत देना चाहिए बच्चों को। और एक साइंटिफिक मेथड है कि जो बच्चे मादरी जबान में स्कूल पढ़ते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम हमेशा हर साल करते रहे। मैं इस स्टेज पे तशरीफ फरमा सारे गेस्ट और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आज के इस जलसे में तकरीबन 4 से 5 लोग प्रोफेसर हैं, 4 लोग। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात का उतना वक्त अगर ज़ाय हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ताकि वो लोगों को मौका देना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, लड़के हो या लड़कियाँ, जो उर्दू मीडियम से है, आज का दौर जो है खास करके एजुकेशन के लिए, हम लोग कभी भी हर साल जो रिजल्ट देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी 90%, 95%, 99% तक है, वो बहुत खुशी की बात है। और जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो माहौल है, वो अलग बनते जा रहा है। पेरेंट्स के लिए मैं इतना कहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम छोड़िए। आफ्टर SSLC, आफ्टर PUC के बाद, और खास करके लड़कियों के लिए हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने तकलीफात जो भी है, क्योंकि अल्लाह की खासियत है, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हमी है, मुसलमान में भी ज़्यादा है, तो ईमानदार है ना, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा कम रहता। जहाँ ईमानदारी रहते वहाँ पैसों के हद तक थोड़ा कमजोरी रहते। तो मैं अपने भाइयों से, अपने माँ बहनों से ये बोलना चाहता हूँ कि हम अगर मेहनत करें, एक वक्त का खाना हमारा कम लगा तो भी परवाह नहीं, हम लोग अपने बच्चों के लिए एक मुस्तकबिल बनाएं, उनके बच्चों के आज हम जो हालात में, वो आगे आने वाले हमारे बच्चे वो हालात में नहीं। शायद हम किसी पे हो, वो हमारी हालात हमारे लेवल पे क्लोज होना चाहिए। आगे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी हालात, खास करके बच्चों को पढ़ाने के लिए अल्लाह हमारे हालात सुधराए और हमारे को ताकत दे कि हमारे बच्चे आगे पढ़ने के लिए हम कुछ बच्चों के लिए करें। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमानान खुसूसी, मेरे बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों और बच्चों, ये बड़ा अल्लाह का फज़्ल एहसान है जो वो हमें रायपुर में इस किस्म के प्रोग्राम में शरीक होने का मौका देता है, जहाँ हम अपने आप को टटोलते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। बच्चों को तो अक्सर वो शेर याद होगा, तू शाही है, परवाज़ है काम के राह, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो ये इकबाल ऐसे नहीं कहा, बल्कि वो बताना चाहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी एक स्टैगनेंट लेवल पे नहीं होगी, उसका ग्राफ जो है ना एक तरह का नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होंगे, यानी आज और कल एक जैसा नहीं होगा। उसके अंदर चेंज आना चाहिए, उसके अंदर बढ़ोतरी आना चाहिए, उसके ग्राफ इस तरह होना चाहिए, ना कि ऐसा, और ना ही तो ऐसा होना चाहिए कि स्टैगनेंट चल रहा है चीज़ों। तो हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को निखारे और मज़ीद अपने अंदर सलाहियतें पैदा करे और मज़ीद उड़ने के लिए कि जो फ्यूल की ज़रूरत होती है वो अपने अंदर उसकी ताकत पैदा करे। और ये ऐसे ही नहीं हो पाता है, महज ख्वाब देखने से मंजिलें तय नहीं होती।
ख्वाब देखे जा सकते हैं, लेकिन नींद होशियार होने पर वो ख्वाब काबी होता है। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें, जो आपको सोने ना दें, वो असल ख्वाब होते हैं। कि आदमी जीते जागते ख्वाब देखे और उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद करे, सुबह और शाम उसके लिए तवज्जो करे, मेहनत करे, अल्लाह से दुआ करे और फिर तब कहीं जाकर के मंजिलें तय हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना कि यहाँ जितने अहबाब बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम इस सोसाइटी में बनाए हुए हैं। मैं खुद भी एक उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ, 7th तक मैंने नया मदरसे में तालीम हासिल की और जब मैं 8th में टैगोर स्कूल में गया तो पूरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, 8th 9th 10th। हम 3 बच्चे थे जो नए मदरसे से गए थे, मैं, इरफान मनियार और एक निज़ाम थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि पूरे 3 साल हम लोग टॉपर्स रहे वहाँ और 10th में हमने टॉप किया और दीगर कॉम्पिटिशन में भी हम टॉप करते हैं माशाल्लाह। तो ये जो है ना असल में मादरी जुबान जिससे आपको लगाव होना चाहिए, खुसूसन उर्दू मीडियम के जो बच्चे यहाँ हैं जिनको आज तहनीत के लिए बुलाया गया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा फैसला, उनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ वालिदैन कि आपका जो फैसला है वो काबिल मुबारकबाद। तो बच्चों को अपने मीडियम में तालीम हासिल करनी चाहिए और इसी में तरक्की है, इसी में जो है हम सब आज हमारे जब जितना इस्लाम का लिटरेचर उर्दू में मिलता है किसी और ज़बान में नहीं, तो हमारे बच्चे अगर उर्दू में परफेक्शन हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, साथ साथ दीन में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं उर्दू के लिए एक शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। मैं अपना छोटा सा तारुफ कराना चाहूँगी जैसे मेरी पढ़ाई हुई है। तो मेरा नाम हैसर आमिना है और मैं IT कंपनी में क्लाउड इंजीनियर का रोल अदा कर रही हूँ। तो मैं भी आप सभी की तरह उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ। मेरा जो स्कूलिंग है 1st से 10th गवर्नमेंट उर्दू स्कूल मोहल्ला रायचूर से हुआ है। तो मैं शादी करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस टाइम पे जब मैं 1st और 10th थी वो हर वक्त कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे, जैसे कुछ हम फर्स्ट आए, प्राइजेस मिलते थे हमें स्कूल की तरफ से, शादी सर की तरफ से। जब मैं 10th में थी तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम था जो पे करना था उसके लिए, बट शादी सर ने कहा उसे फ्री करके लाइक हमारे स्कूल से 5 बच्चों को ले गए थे वहाँ पे और मुझे शादी सर से गोल्ड मेडल मिला वो प्रोग्राम में। तो जैसे मेरा 1st और 10th हर क्लास में मैं अव्वल आती थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मैथमेटिक्स टीचर बनूँ क्योंकि मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मेरे रोल मॉडल भी मेरे मैथ्स टीचर थे। तो जब मेरा 10th का रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 84 स्कोर की थी, 84% आया था मेरा 2013 में। तो बहुत खुशी हुई वो जान के और मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स और मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी बहुत खुश होते थे और मेरी भी साथ देते थे कि देखो 10th अरब मोहल्ले स्कूल से पढ़ी है बच्ची और जैसे इतना अच्छा स्कोर की। तो वो सब जान के मुझे बहुत खुशी होती थी। जैसे आप सब अभी खुशी है, तब मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे मैथमेटिक्स टीचर बनना था। तो मैं PUC साइंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज स्टेशन रोड वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो जब मैं 1st ईयर में फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था मेरा, तो जब 1st क्लास की बायोलॉजी की थी, बायोलॉजी मैम आए क्लास में और सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सभी को जैसे अराउंड 65 स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो जो उर्दू मीडियम के थे ना उनको ठहरने के लिए कहा मैम ने। पता नहीं उनका क्या इरादा था, बट उन्होंने बोला कि जो उर्दू मीडियम से ठहर जाइए। तो उसके बाद उन्होंने बोला आप पहली फुर्सत में आपकी TC निकाल के आर्ट्स में चले जाइए क्योंकि आप लोगों की वजह से, उर्दू मीडियम की वजह से जो बच्चे आते हैं साइंस में फेल हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा जो साइंस का है ना रिजल्ट डाउन हो रहा है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा और अपने आप में जैसे कि मैं 10th पास होकर बहुत खुशी एडमिशन ली थी कि मैं कर सकती हूँ बोल के, बट ये बात जो है ना मैं अपने आप को खुश की तरह काम की, जबरदस्त खुश के जैसा काम करके मैं ये सोचती कि अभी मुझे खूब मेहनत करना है क्योंकि ये बात मुझे इनकी बात को है ना मुझे फेल होकर रिजल्ट डाउन करने नहीं टॉप करने आए हैं। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया तो हमारे अब्बा रिजल्ट देखने के लिए गए थे। तो क्या हुआ, लिस्ट लगाए थे दीवार पर, तो जब हमारे अब्बा जो है ना नीचे से मेरा नाम तलाश करने
प्रिंसिपल के सामने कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच हुई, मैं टॉपर बनी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है इसमें। उसके बाद मेरे जो इंजीनियरिंग की मैंने CBT लिखा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रैंकिंग आई थी, जिसकी वजह से मुझे नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायचूर, वहाँ पे मुझे फ्री सीट मिल रही थी इंजीनियरिंग की। बट मेरा इरादा था मुझे मैथमेटिक्स टीचर होना था, तो BSc करने मेरी ख्वाहिश थी कि मैं BSc करूँ। तो हमारे बाबा बोले कि चलो उसमें लगा देंगे, अच्छा आप पढ़ सकते हो, देखते हैं कितना हो उतना पढ़ो, अगर कुछ डिफिकल्टी होगी फेल हो गए तो परवाह नहीं, आपको फिर से BSc लगा देती हूँ नेक्स्ट साल। तो मैं ये पेरेंट्स की मेरे ऊपर बहुत उम्मीद थी, उन्हें यकीन था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो तभी वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हुआ मेरे कॉलेज में। कॉलेज गई तो इतना बड़ा कॉलेज देख के मैं बहुत घबराती थी कि मैं इतने बड़े कॉलेज में कैसे कर सकती हूँ। वहाँ की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मैं समझ सकती हूँ क्या नहीं। फर्स्ट 1 महीना तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई नवोदय में, क्योंकि वहाँ की इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी बहुत अच्छी रहती थी, कॉन्सेप्ट्स अलग थे, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग दिखते थे, कोडिंग है, जो कैट था, वो सब्जेक्ट से मुझे बहुत ऊपर से जाते थे। बट मैं बुक्स खोल के बैठती थी। जस्ट 1 महीना तो मेरा ऐसा नहीं गया। जब फर्स्ट इंटरनल आया, एक सेमेस्टर में 3 इंटरनल रहते थे, तो तीनों का एवरेज निकल के 20 मार्क्स जो फाइनल सेमेस्टर रहा। अपनी जो एक जर्नी बताई, तो उसके ऊपर आप आइडल होकर काम करें। यहाँ पे जो रोल मैं हर स्पीच में यही कहता हूँ कि बच्चों से ज्यादा मेन रोल अपने माँ बाप लोगों का होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे कामयाब होंगे, क्योंकि माँ बाप खुद मोबाइल देखते बैठते हैं तो बच्चे कामयाब कहाँ से होंगे। ये बहुत लंबी स्पीच जाएगी, मैं उतना नहीं कहूँगा कि एक कहानी मैं सुनाऊंगा जरूर। एक ईगल जो है, एक चील जो होता है, आपको पता होना चाहिए एक चील की उम्र, एक एज उसका 75 इयर्स जीता है चील। एक ईगल 75 इयर्स उसकी जीने का स्पैन होता है, मगर वो 40 और 45 साल में उसके पर जो होते हैं दबदबा लगते हैं, चोंच उसकी थम जाती है, नाखून पर बेंड हो जाते हैं। वो 35 और 40 साल में वो अगर डिसीजन नहीं लेता तो वो उड़ के जाके पहाड़ पे जाके अपने पत्थरों पे अपनी चोंच को तोड़ता है, अपने पैरों को पत्थर पे मार मार के अपने पैरों को गिराता है, अपने नाखूनों को पत्थर को मार मार के अपने नाखूनों को गिराता है। आखिर में जाके 3 महीने एक वनवास जिंदगी काट के 3 महीने के बाद फिर उसको नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, फिर वो 35 साल आराम से उड़ता है। तो वो 35 और 40 साल में अगर वो डिसीजन नहीं लेता कि मैं ये चोंच नहीं तोड़ूंगा तो वहीं मर जाएगा 35 और 40 साल में। तो एक परिंदे को, एक ईगल को मालूम है अभी उसे 40 साल जीना है तो मुझे क्या करना है। हम खाली झुंडे तो होते हैं, खुद के नाखून को गिराना, खुद के चोंच को तोड़ना, खुद के पैरों को तोड़ना एक परिंदा जानता है। तो हमारी जितने भी लड़कियां, जितने भी लड़के बैठे हैं, जरा मोबाइल छोड़ पा बोले तो गुस्से से फेंक देते। एक कुर्बानी नहीं दे सके, सिर्फ एक शैतान जो अक्सर आपके बाजू रहता है, ये दुनियाई और दीनी दोनों को खत्म कर रहा है, जिसका नाम है मोबाइल। ये छोड़ो, ये बड़ी कुर्बानी। परा मत तोड़ो, आपके हाथ मत दो, आपकी आंख मत निकालो दो। हमारी पेरेंट्स से और एक टीचर से हम ये माइक के थ्रू एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे कि आप 5 साल या 6 साल तक मोबाइल को छोड़िए। आने वाले 50 साल आपकी जिंदगी जन्नत हो। अगर 5 साल और 6 साल आज आप मोबाइल में बिजी रहेंगे तो आने वाले 50 साल आपकी जिंदगी जहन्नम हो। एक ही लॉजिक है, एक ही लॉजिक है। अभी 5 साल को सही तरह से इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप टॉप लेवल पे गुजरेंगे। कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक शख्सियत आपके लिए आइडियल है। अब मैं अमीना कंप्यूटर साइंस है, मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ, साजिद भाई है, मौलाना साहब है, रियाज डॉक्टर साहब है, हमारे प्रोफेसर जहीर साहब है, और मेन हमारे असमुद्दीन अख्तर साहब, उनके लिए जोरदार तालियां हो। मैं बहुत उनसे इंस्पायर हूँ कि डाउन टू अर्थ इंसान है वो, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं दुआ करता हूँ
कि खाली आपको छुट्टियां बिठाए नहीं तो सामने आपको क्या अच्छे शर्ट डाले वो देखने के वास्ते नहीं, वो लोग उन लोगों के पीछे जो दर्द भरी कहानी है, जो तकलीफें उठा के, जो अमीना ने कहा जितने तकलीफें उठा के जिंदगी में लड़कर आज कुछ मुकाम बनाकर आज यहाँ स्टेज पे बैठे हैं, तो उनकी सिर्फ उनकी एक ही जिद थी कि हमारी जिंदगी को सिर्फ बदल सकता है तो एजुकेशन, और एजुकेशन के सिवा कोई बदल नहीं सकता, और एजुकेशन ही सब कुछ है। तो आप भी अपने दिमाग में इतनी तरह जहन में डाल लीजिए कि सिर्फ अपनी जिंदगी को कोई बदल सकता है तो वो पढ़ाई है और एजुकेशन है। मैं यहाँ गुजारिश करता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाओ, अपने खानदान के वास्ते पढ़ाओ, अपने घर के वास्ते पढ़ाओ, अपने मोहल्ले के वास्ते पढ़ाओ, अपने गांव के वास्ते पढ़ाओ। आने वाले दिनों में सारी दुनिया उसके बारे में पढ़े, ऐसा पढ़ाओ। सबसे बड़ी ताकत होती है, फर्स्ट टीचर ऑफ द स्कूल कौन है? मदर। माँ अगर जिद कर रही, मैं हर स्पीच में कर रहा हूँ, माँ अगर जिद कर रही तो बच्चा पूरी दुनिया घूम सकता है, और बच्चा अगर जिद कर रहा तो अपने माँ बाप को पूरी दुनिया घुमा सकता है। लेकिन तालियां मारने का नहीं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये मजहर साहब जो प्रोग्राम रखे हैं अपने वालिद साहब के नाम से, अभी भी उनके दिल में, उनके दिमाग में उनके वालिद साहब है, तो हर साल वो प्रोग्राम करते हैं मजहर साहब। यहाँ हमें बुला के बात कराने का एक ही मकसद है कि इतनी बच्चों में, स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा कामयाब हो जाए, दुनिया में नाम कर जाए, आने वाले दिनों में अमीना जैसे हमारे साथ स्टेज पे बैठे तो उनका प्रोग्राम कामयाब होगा और उनके अब्बा की रूह खुश हो जाएगी। मौलाना आपको आना है, बुला जरूर आऊंगा बोल के, और फिर यहाँ आने के बाद लगा कि वो 2 महीने से इतनी मोहब्बत से क्यों बोल रहे थे। और यहाँ हम जो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों में जाते हैं, सियासी गैर सियासी, लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम, क्योंकि दूसरे प्रोग्रामों में सीटें, चेयर्स खाली रहते हैं, लोगों को फोन करके बुलाया जाता है कि भाई हमारी इज्जत का सवाल है, आगे बैठ जाओ। चीफ गेस्ट आगे बैठते हैं, उनके सामने हमारी कमजोरी होगी तो बराए मेहरबानी यार 10-15 दोस्तों को लेके आ जाओगे, कॉल करते हैं। ये मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम है। मेरी इस बात की पूरी तरह तारीफ नहीं करेंगे जितने यहाँ पर हजरात बैठे हुए हैं, कि मैं जब से देख रहा हूँ चेयर्स कम पड़ रहे, मजहर भी उठ रहे, चेयरों का इंतजाम कर रहे हैं। इतने लोग माशाअल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं। ये आपकी खुलूस और आपकी मोहब्बत और आपकी कामयाब कोशिश का ये रिजल्ट है, नतीजा है। हम दुआ करते हैं जितने लोगों को आपने ये फूल दिया है हाथों में, अल्लाह ताला आपके मरहूम वालिद की बरकत पे इससे ढेर सारे फूल रहमत के बरसाए। दूसरी बात कह के मैं अपनी जगह ले लूंगा, आप लोगों को काफी वक्त हो रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं देश भर में मुसलमानों के ये जो हालात है वो आपको मालूम है, किसी भी तरीके के हो, मुआशी तौर पे हो, पॉलिटिकली हो, सामाजिक किसी भी हिसाब से हो, जो हमारे हालात हैं वो सबसे ज्यादा पसमानदा, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा लाचार, मजबूर जिनको शुमार किया जाता है, उसमें अव्वल दर्जे पर हम आते हैं। तो उसकी कई वजूहात है। सबसे बड़ी बात, माजी में जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ जो नाइंसाफियां की है, और आज ये तालीम का दौर इसलिए है, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाशूर हैं आज के दौर में, आज के जमाने में, जो हमें उन अंधेरों से हटाकर और रोशनी दिखाने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं भी एक उर्दू मीडियम स्कूल से आता हूँ, जहाँ पे हमारे बहन ने अभी बताया, मेरी भी तालीम वहाँ 7 क्लास तक हुई। फिर उसके बाद आगे की तालीम के लिए यूपी, लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ा। वहां जाके उर्दू की अहमियत हमको समझ में आई। उर्दू पढ़ने वाला जितने यहाँ पर बच्चे, स्पेशली आप लोगों के उतनी देर से बर्ताव से दिख रहा है कि आप लोग उर्दू मीडियम के बच्चे हैं।
तो यहाँ खासतौर पे हमारी बच्चियां भी बैठी हुई हैं। आज के दौर में बच्चों से ज्यादा बच्चियों में तालीम का शौक हम लोग मुआशरे में देख रहे हैं, और खास तौर पे बच्चा हमारे मुआशरे का बच्चा हो या बच्ची हो, उर्दू तालीम हासिल करते हैं, उर्दू मीडियम पढ़ते हैं, तो आप लोग कभी भी किसी भी चीज से मायूसी का शिकार ना हो। देखिए हमारा ईमान है, मुसलमान मर्द हो या औरत जो भी हो, उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं होता, जब तक कि मुक़द्दर में नहीं होता। हम लोग देखते हैं, मिसाल के तौर पे वक्त ज्यादा है, एक बात कह के मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हट के है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं है जिसको नहीं जानता हो, उस कंट्री का नाम वो है फलस्तीन। फलस्तीन के बच्चे, बूढ़े, माँ, हर एक के मामलात क्या हुए हैं सारी दुनिया के सामने है। फलस्तीन को लेकर आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक उसकी हिमायत में है, एक इसकी मुखालिफत में है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, तकरीबन 56-57 कंट्रीज है मुसलमानों के, और एक वो फलस्तीन है जिसको पूरी दुनिया कहती है कि वो मजलूम है। हमारे देश की ये स्ट्रैटेजी रही है 2014 से पहले, 2014 के बाद से बदल चुकी वो और बातें संघ परिवार के नजरियात की वजह से, कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। तो वहां पर जो 65 बच्चे मर के खत्म हो गए, 2 लाख लोग लापता है, ये तमाम चीजें 56-57 कंट्रीज बैठकर तमाशा देख रहे थे। आप क्या कहेंगे इसको? या मजे ले रहे थे, क्या कहेंगे? या फिर किसी मदद का इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे? लेकिन पिछले 8 दिनों में हमने देखा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। तो आज हमने देखा कि इस दुनिया के सफे से एक मुस्लिम लीडर ने, एक मुस्लिम कायद ने आवाज उठाई, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, 2 कंट्रीज को उसने जवाब दिया। आज मुस्लिम दुनिया का इंटरनेशनल लेवल पे मौक़िफ़ तब्दील हो गया, चेंज हो गया। आज फलस्तीन के बेवारे बच्चे सब ये आहो-फुगा करने के बजाय खुशियां मना रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसाफ दिया। इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक बात आखिरी कह के अपनी जगह ले लेता हूं। हम लोग उम्मन ये समझते हैं ऑटो चलाने वाला अगर बाप है तो बेटा भी ऑटो चलाए, मजदूरी करने वाला बाप है तो बेटा भी मजदूरी करे, छोटा मोटा कारोबार करने वाला है तो मैं भी वही कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा। ऑटो चलाने वाला शायद कार चला रही है, नहीं है, गलत बात है। ऐसा सोचने की हर कुछ जरूरत नहीं है। रोकने वाले अहबाब को आपके सामने पेश किया, इसीलिए किया गया है कि आप इनसे इंस्पायर हो कि उर्दू मीडियम पढ़ने के बावजूद भी इतनी आला कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि जो बच्चे उर्दू मीडियम से होते हैं वो किसी से कम नहीं होते, क्योंकि जो अपनी मादरी जुबान में पढ़ता है वही बच्चा कोई बड़ा आदमी बनता है। मादरी जुबान जितनी अच्छी होती है वही बच्चा बहुत आला कामयाबी हासिल कर सकता है। मैं एक साइंटिफिक डाटा स्टडी हुई है तो वो आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूँगा कि आदमी जो बड़ी कामयाबी हासिल करने में जो चीज़ रिकॉर्ड बनती है वो उसकी जहन की सोच है। आदमी की सोच अगर ना हो कि मैं कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ तो फिर वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर उसकी सोच हो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ये काबिलियत है, अल्लाह ने मुझे भी दिमाग दिया है, मुझे भी अल्लाह ने चीज़ें दी हैं, अगर वो ये फिक्र अपने अंदर रखता है तो वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सारा मामला साइकोलॉजी का है, तो साइकोलॉजी को अपनी दुरुस्त करना है, अपनी सोच को दुरुस्त करना है। जो ओलंपिक मुकाबले होते हैं या वर्ल्ड कप के मुकाबले होते हैं तो उनमें जो पहलवानों में कुश्ती होती है उनका एक सर्वे किया गया कि भाई कौन सा पहलवान हारता है, कौन सा पहलवान जीतता है। तो ये बात सर्वे में ये बात आई कि जो पहलवान पहले ही उसके दिमाग में बात बैठी रहती है कि मैं नहीं जीत सकता, वही पहलवान हारता है, और जिसके जहन में ये बात होती है कि मैं जीतूंगा और वही पहलवान जीतता है। तो लिहाजा ये मामला साइकोलॉजी का है और इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की गई। जो ग्रास सुपर होता है ना, ग्रास सुपर जानते हैं जिसको हम उर्दू जुबान में खिला कहते हैं, तो ग्रास सुपर को लेकर स्टडी की गई कि ग्रास सुपर जब जो बड़ा ग्रास सुपर होता है वो जब छलांग लगाता है तो 6 फीट की ऊंचाई तक होता है।
अपनी पूरी फोकस से जब वो छलांग लगाता है तो 6 फीट तक ऊपर उठकर आना वो दूर जाकर लैंड गिरता है या लैंड करता है। तो उसको स्टडी करने के लिए एक ऐसे गिलास के एक पिंजरे में रखा गया जिसकी हाइट जो 5 फीट थी और उसको उसमें रखा गया। अब वो जब भी छलांग लगाता तो उसका सर जो है गिलास से टकराता। अब 3-4 बार करने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि यहाँ मैं 6 फीट नहीं उड़ सकता, तो उसने अपनी आदत बना ली है वो 5 फीट उड़ने के लिए रकम था तो वो उड़ने लगा। अब उसके बाद उसको कुछ दिन इस तरह इस पिंजरे में रखा गया। उसके बाद जब उसको बाहर निकालकर खुले मैदान में छोड़ा गया तो देखा गया कि वो 5 फीट से ज़्यादा उड़ ही नहीं सकता। क्यों? उसके जहन में बात बैठ गई कि मैं 6 फीट नहीं उड़ सकता। तो ऐसे स्टडी की गई, 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट के पिंजरे में रखकर स्टडी की गई और 15 दिन 20 दिन उसको रखने के बाद उसको बाहर निकाला गया तो देख रहे हैं कि वो है ना वो जितने पिंजरे में रखा गया था उतना ही उड़ रहा। हालांकि उसकी नजर ऊपर थे कि वो 6 फीट उड़ सकता है, खुले मैदान में छोड़ने के बावजूद भी वो उड़ नहीं पा रहा। क्यों? उसके जहन में एक सोच बैठ गई कि भाई मैं नहीं उड़ सकता, मैं उड़ूंगा तो मुझे मार लगेगा। तो ये जो जहनी कंडीशन है ना, ये असल आदमी की बंदिश होती है। तो हमको इस साइकोलॉजी से बाहर आना है कि उर्दू मीडियम के बच्चे नहीं पढ़ सकते। नहीं, उर्दू मीडियम के बच्चे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आला कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम इस साइकोलॉजी से बाहर निकलेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मौका दिए है। अभी तक जितने भी तहरीरें यहाँ पर हुई है आप लोगों को मोटिवेशन के ताल्लुक से या आगे फ्यूचर में क्या करना है इसके ताल्लुक से अच्छी खासी बातें हुई है जो वापिस दोहराना नामुमकिन है, अभी दोहराना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी बातें यहाँ पर पूरे मुकर्रिर ने यहाँ पर आपके सामने रखी है। तो मैं जो मुझे वक्त दिया गया है 6 से 7-8 मिनट का, तो मैं उन्हीं बातों को जो है मेरी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने रखना है, वही बातें रखकर मैं उन्हीं बातों को खत्म करना चाहूँगा। तो उससे पहले जो उर्दू की जब से यहाँ पर ये चली है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, सारे जहाँ में तुम हमारे जुबान की। तो ये जो राग का शेर था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं राग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं राग, सारे जहाँ में तुम हमारे जुबान की। तो इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि मैं भी एक उर्दू मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। तमाम गेस्ट यहाँ पर जो आए हैं तमाम भी तकरीबन उर्दू मीडियम से ही है। तो बात जब उर्दू मीडियम की चल रही है तो बिल्कुल एक रिसर्च, एक साइंटिफिक चीज़ें तमाम यही बताई है कि मादरी जुबान में तालीम हासिल करने वाले बच्चे हर जुबान को दीगर जुबानें हासिल करने में काफ़ी मदद होती है जो बच्चे मादरी जुबान में तालीम हासिल करते हैं। तो बहरकत मैं अपने इस उन्वान से हटकर जो बात कहने जा रहा हूँ, एक इदारा जो असीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में अभी इंदू सर आपको तारुफ कराए हैं, मैं उस इदारे से मैं हूँ जहाँ पर मैं अपनी खिदमत तकरीबन 30 साल से इस इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये इदारा असीम प्रेमजी फाउंडेशन जो एक विप्रो के चेयरमैन हैं असीम प्रेमजी, उन्होंने ये कायम किया है। असीम प्रेमजी अपनी कमाई का सरमाया 80% से ज़्यादा सरमाया इस असीम प्रेमजी फाउंडेशन में लगाया है और ये असीम प्रेमजी फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है समाज की फलाह बहबूदी के लिए काम करता है। इसके लिए उन्होंने जरिया चुना है एजुकेशन। उनका मकसद ये है कि just equitable movement and sustainable society। क्या है? Towards just equitable movement and sustainable society, यानी कि समाज के अंदर क्या है एक मसावाना चीज हो और तमाम जो है ना उसमें उसको तमाम सहूलियात हासिल रहे। ये उनका एक विजन है। क्या है? एक विजन है कि पूरी सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर, ना सिर्फ ये रायचूर या कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर वो चाहते हैं कि अपनी जरिए से इस मुल्क के अंदर मैं अपने जरिए से क्या कर सकता हूँ, वो अपने जो मैं कमाया हूँ इस मुल्क से, तो मैं ये मुल्क को क्या है अपना दान दे सकता हूँ इन्हीं के जरिए से। तो उनका मकसद ये है कि एजुकेशन अगर इस सेक्टर में अगर पैसा लगाऊंगा तो ये मेरा विजन पूरा हो सकता है। तो उस दिमाग में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के वर्कशॉप टीचर्स के साथ ज्यादा काम होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट के जो भी टीचर्स को ट्रेनिंग देना, इस तरह के काम हमारे 15-20 सालों से चलते आए हैं। इसी के साथ साथ क्या है हेल्थ के ऊपर भी उनका काम शुरू हुआ है। लेकिन
आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अजीम प्रेमजी का जो काम है वो एक नर्सरी से लेकर एक यूनिवर्सिटी लेवल तक का भी उनका काम चल रहा है। यानी ट्रेनिंगों के जरिए आंगनबाड़ी के टीचरों को ट्रेनिंग देना या उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग देना, इनके साथ साथ जो है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी बेंगलोर के अंदर है। शायद आप ये प्रोग्राम के बाद आप लोग एक वेबसाइट से सर्च कर रहे थे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अगर देखेंगे तो फिलहाल कर्नाटक की सबसे टॉप यूनिवर्सिटियों में उसकी जो ज्योग्राफी है वो सबसे बड़ी, उसकी लाइब्रेरी और उसका अकोमोडेशन फिलहाल इंडिया का सबसे टॉप अकोमोडेशन जो हॉस्टल फैसिलिटी से बोलते हैं उसमें है। तो यहाँ पर रिवर्स है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्यादा परसेंटेज करके आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी या ज्यादा फीस देकर आने वाले उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो सबसे ज्यादा सबसे कम इकोनॉमिक कंडीशंस में कम है, जिनकी कोई आमदनी नहीं है ज्यादा, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए विद अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन एंड टीचिंग होता है। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये जो यूनिवर्सिटी फाइंड की गई है ये कमर्शियलाइज नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसे कोर्स नहीं रखे गए हैं इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स के नहीं है, बल्कि एमए इन लॉ है, एमए इन एजुकेशन है, एमए इन फिलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट को रखा गया है जो बच्चा वहाँ से तालीम हासिल करके आने के बाद सोसाइटी को फायदा पहुंचा सके। जो पीछे अच्छे विकेट्स बन रहे हैं 50 से लेता जस्ट विनिंग शॉट मार के निकलना, वो हालत में आ जाएगी क्योंकि सब लोग अच्छे बैटिंग करे हैं। सो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभम गिल ऐसे लोग आज स्टेज पे पहुंच रहे। तो मुझे जो है लास्ट में मौका मिला है, जितना भी मैं समझ सकता हूँ, जितना बोल सकता हूँ, बोल कर मेरी बात खत्म करता हूँ। ये जो है अजहर हुसैन 9 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। 9 साल से ये प्रोग्राम का सदारत मुझे दे रहा है, क्योंकि मुझे आखिरी बात करना है, पेशेंस के साथ बैठकर सबका सुनकर मुझे बोला है। ये अजहर हुसैन ये 9 साल का प्रोग्राम, जो भी मैं प्रोग्राम देखता हूँ वो नया प्रोग्राम दिखता है और कामयाब प्रोग्राम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक नौजवान अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, वो उस कमाई को लेकर जितना भी उसमें परसेंटेज निकाल कर अपने कौम के उर्दू मीडियम बच्चों पे खर्च करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको और नवाजे और जिंदगी में खर्च करे। लेकिन उनका मकसद देखिए, उर्दू मीडियम जो पढ़ने वाले किस्मत वाले, क्योंकि एक उर्दू तालिब आसानी के साथ हदीस पढ़ सकती है, आसानी के साथ कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन आज हाथ ये हो चुका है, उर्दू मीडियम को भी लोग जो है बहुत ही कमजोर लोग उर्दू पढ़ाते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। कमजोर कौन है? कमजोर आज के दौर के अंदर जो चीज पे अय्याशी उड़ाकर अपना पैसा गलत कामों में खर्च कर अल्लाह की नाफरमानी कर कर जो काम करते हैं वो गरीब है। जो इल्म हासिल कर कुरान मजीद हदीस पढ़कर हम इल्म हासिल करते हैं वो गरीब है, गरीबों सबसे अमीर है। उस तरीके पे हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा देखता हूँ उर्दू मीडियम के बच्चों को, वो अच्छा अपना स्कोर करते हैं सही। अब बहुत लोगों ने कहा 5 सब्जेक्ट उर्दू में रहते हैं, 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। जैसा ही मैडम भी ने कहा, जैसा ही साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, 1% सब्जेक्ट लैंग्वेज होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन वो टफ से अगर हम खामोश बैठा नहीं, हमको मेहनत करना है। जैसा हमारी बहन ने बहुत ही अच्छा आज बड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आपके लिए मॉडल है जो आपने एक्सपीरियंस है आपने यहाँ शेयर किए, लेकिन आप भी एक तय करें यहाँ से जाकर मैं अच्छा पढ़ो। लेकिन मैं हमेशा आपको बात कहते रहता हूँ, आप जितना भी पढ़े अच्छा पढ़े, लेकिन माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि बाप जो है सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना कर कमा कर घर को लाता है। तो बच्चे जो है आज के दौर में सिगरेट, बीड़ी, गांजा, शराब, सूद हर इसमें उतरा है।
देखिए माँ बाप का क्या हाल होना चाहिए। मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन माफी चाहता हूं मैं, लेकिन एक जिम्मेदार होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लड़का माँ बाप को नाराज करता जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आपके लिए इतने ख्वाब, ढेर सारे ख्वाब रखेंगे मेरे माँ बाप कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़कर अच्छा माफी साहब करें, अच्छा पढ़ लिख कर कुछ दुनिया को दे। लेकिन आज के हालात हमारे शहर में भी देखिए कैसे कैसे हालात पैदा हो चुके हैं। हम देख रहे हैं रोज आज पुलिस अफसर से टेलीविजन के अंदर बंद करना है शहर। ये हालात हमारे जो शहर के आ चुकी है। ये क्यों? क्योंकि हमारी लापरवाही। माँ बाप जब मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ तो आके मेरे सामने जो अपने बहन बोलते हैं वो क्या भैया बीपी आ गया, शुगर आ गया, हार्ट प्रॉब्लम, क्या क्या वैसा क्या टेंशन है, तो वो बोलते हैं साहब मेरा बच्चा बहुत बिगड़ चुका है, वक्त तो आता नहीं है। रात में अगर सुबह में रात में 10 बजे अगर खाना 9 बजे खाना खाता तो सुबह को जब पहुंचता है, क्या हाल होना चाहिए उनका। इसीलिए पैदा किए हो हम दुनिया में, इसीलिए आए हैं। जिंदगी अल्लाह ताला ने एक ही मरतबा देता है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात से पैदा किया है, हम सोचने की समझने की सलाहियत दी अल्लाह ताला ने, तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत दर्दनाक बात है, लेकिन इससे सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा ही आप लोग अपनी जिंदगी को खेल बनाएंगे तो आपके वालिद वालिदैन इस दुनिया से जल्द खत्म हो जाएंगे।